قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ حضرات، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 900 سال تک اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں کی۔ 900 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ 900 سال میں صرف 80 لوگوں نے نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا۔ صرف 80 لوگوں نے نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن قربان جائیے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی عظمت و شان پر 40 سال تک خاموش رہے۔ 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا۔ صرف 23 سالہ زندگی میں پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام پھیلا دیا۔ 23 سالہ زندگی میں پوری دنیا میں مذہب اسلام پھیلا دیا۔ کیا شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ بیگانے بھی کہتے ہیں کہ محمد کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ 40 سال کے بعد حکم خدا بندی ملا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، نبوت و رسالت کا اعلان کیجیے۔ 40 سال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا۔ 40 سال کے بعد انا محمد الرسول اللہ کا اعلان کرنا ہوا۔ کفاران مکہ آپس میں چیمی گوئیاں شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو 40 سال تک محمد خاموش رہے، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ 40 سال تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بلال حبشی کا گزر ہوا۔ کفاران مکہ نے کہا بلال کیا کچھ سنے ہو؟ بلال حبشی نے کہا کچھ نہیں۔ کہا جو تمہارے ساتھی محمد ہیں ابھی تک تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن اب وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے کفاران مکہ سنو، بات ماننے کے قابل تو نہیں ہے، البتہ اگر محمد نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ، کیا تم نے محمد کی 40 سالہ زندگی کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے 40 سالہ ان کی ہسٹری کو پڑھا نہیں ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ یہ بتاؤ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ بولے ہیں؟ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم سچ کہتے ہو، 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ نہیں بولے ہیں، 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ تو اس وقت حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ سنو، جو 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، جو 40 سالہ زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت نہ کیا ہو، اگر وہ 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے جو 40 سال پہلے جھوٹ نہ بولا ہو وہ 40 سال کے بعد بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا، کفاران مکہ آپس میں چیمی گوئیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کو معلوم چلا، لوگوں کو برگلانا شروع کر دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن نبوت و رسالت کا اعلان کیا تھا مکہ شریف کی سرزمین پر،
उस दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में नहीं थे। आप तिजारती काफिले के साथ मुल्क शाम गए हुए थे। अभी आप शाम पहुंचे नहीं, रात हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। आपने काफिले वालों से कहा अंधेरा हो गया, लिहाजा रात में हम यहीं ठहर जाएं। इतना कहा, कहने के बाद आप गिरजा घर के अंदर जाते हैं, गिरजा घर के पादरी से मुलाकात करते हैं। पादरी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, देखने के बाद कहता अबू बकर तुम हमें इजाजत दो, हम तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहें। अबू बकर तुम हमें इजाजत दो, हम तुम्हें खलीफतुल मुस्लिमीन कहें। हजरत अबू बकर सिद्दीक चौंक जाते हैं, ये क्या मामला होने वाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, ऐ पादरी ये बता क्या मामला है। वो पादरी कहता है, ऐ अबू बकर क्या तुम्हें पता नहीं है, मक्का में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने नबूवत और रिसालत का ऐलान किया है। उनके खुलफा में सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन तुम्हें कहा जाएगा, उनके खुलफा में सबसे पहले खलीफतुल मुस्लिमीन तुम्हें कहा जाएगा। उनके नबूवत और रिसालत की गवाही सबसे पहले तुम दोगे, उनका कलमा सबसे पहले तुम पढ़ोगे। इतना कहना था। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु चौंक गए, ये क्या मामला होने वाला है। रात गुजरती है, सुबह को आपने अपना सारा सामान काफिले वालों को दिया। आप मुल्क शाम जा रहे थे, इरादा आपने तरक कर दिया। मुल्क शाम जा रहे थे, मक्का शरीफ की तरफ रवाना होते हैं। मक्का शरीफ की सरजमीन पर आप दाखिल होते हैं। अबू जहल से मुलाकात होती। अबू जहल ने कहा, ऐ अबू बकर क्या कुछ सुने हो। का कुछ नहीं। कहा जो तुम्हारे साथी मोहम्मद हैं अभी तक कुछ नहीं बोले थे, 40 साल के बाद नबूवत और रिसालत का उन्होंने ऐलान किया है, क्या इस बात को माना जा सकता है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा अभी मैं बाहर से आ रहा हूं, चेहरा गर्दो गुबार में अटा हुआ है, कुछ देर के बाद फैसला किया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर जाते हैं, घर वालों से मुलाकात करते हैं। चेहरे पर गर्दो गुबार लगा हुआ था, चेहरे को साफ करते हैं। घर वालों से पूछते हैं बताओ मोहम्मद कहाँ है। घर वालों ने कहा ये तो नहीं पता मोहम्मद कहाँ है, अलबत्ता हालात जरूर बरपा है। घर घर में इख्तिलाफ हो गया, बाप बेटे में इख्तिलाफ है, भाई भाई में इख्तिलाफ है, बेटी माँ में इख्तिलाफ है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ऐसा क्यों। कहा इसलिए कि मोहम्मद ने 40 साल के बाद नबूवत और रिसालत का ऐलान किया है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अबू बकर सिद्दीक घर से बाहर निकलते हैं, लोगों से पूछते हैं आका करीम किधर गए हैं। किसी ने कहा इधर गए हैं। वो शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस रास्ते से निकल रहे हैं, रास्ता खुशबू से मुअत्तर हो रहा है, रास्ते में भीनी भीनी खुशबू आ रही है। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरत बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी खुशबू को महसूस करते हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए जा रहे हैं। उस दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा पहाड़ी पर तशरीफ फरमा है। हिरा वो पहाड़ी है जिस पहाड़ी पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। इकरा पढ़ो। आका करीम ने फरमाया था माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा पहाड़ी पर तशरीफ फरमा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो बकर सिद्दीक आ रहे हैं, मेरे सरकार खड़े हो जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। हजरत बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हों को मुबारकबाद पेश करते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि आका करीम खड़े हो गए, अबू बकर सिद्दीक और तेज चलने लगते हैं, मेरे सरकार के करीब पहुंचते हैं, आका करीम के पास पहुंचते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बकर सिद्दीक का दस्ते मुबारक पकड़ा, हाथ शरीफ अपने हाथ में लिया। लेने के बाद कहते अबू बकर मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, ऐ अबू बकर मैं अल्लाह का रसूल हूं, इस दुनिया इंसानियत का आखिरी रहनुमा हूं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो अल्लाह का पैगंबर होता है, जो अल्लाह का नबी होता है, वो अपने नबूवत की कोई निशानी बयान करता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बकर सिद्दीक सुनो, जो रास्ते में तिजारत की राह में गिरजा घर के अंदर पादरी ने मेरे ताल्लुक से तुम्हें जो बशारतें दी थी, क्या वो मेरी नबूवत के लिए काफी नहीं थी, क्या वो मेरी नबूवत के लिए काफी नहीं है। इतना कहना था। हजरत बकर सिद्दीक कदमों पर गिर जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब देर न कीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ा के दाखिल इस्लाम कर लीजिए। हजरत बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला उन्होंने कलमा पढ़ा, दाखिल इस्लाम हो गए। घर वालों को मालूम चला कि अबू बकर ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। खानदान वालों को पता चला कि अबू बकर सिद्दीक ने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। खानदान वाले अबू बकर सिद्दीक को अजियतें देना शुरू कर देते हैं, इतना मारते हैं कि आप बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। जब आपको होश आता है, खानदान वालों ने कहा ऐ अबू बकर अब भी मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दो,
अबू बकर सिद्दीक को जब होश आया, आपने फरमाया, क्या मेरे घर वालों ये बताओ मोहम्मद कैसे हैं? खानदान वालों ने कहा, अबू बकर, हमने तुम्हें इतनी अजियतें दी, इतना मारा, इतनी तकलीफें दी, फिर भी तुम मोहम्मद के बारे में पूछ रहे हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ऐ मेरे घर वालों सुनो, अब चाहे तुम मेरे जिस्म की बोटियां बोटियां करवा दो, चाहे हर बोटी का कीमा कीमा बना दो, मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे कलमा पढ़ने से रोक नहीं सकती है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हिसाब से इस्लाम की नशर व इशाअत कर रहे हैं, अपने हिसाब से इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिसाब से इस्लाम फैला रहे हैं। 8वें नंबर पर हजरत बिलाल हबशी का नाम आता है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ते से गुजर हुआ। बिलाल हबशी ने देखा कोई हसीन व जमील चेहरे वाले आ रहे हैं, वल्लैल जुल्फों वाले आ रहे हैं, बशम्स चेहरे वाले आ रहे हैं, जिनके चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं, जिनका चलने का अंदाज निराला है, बोलने का अंदाज निराला है, जिनके चेहरे के हुस्न का कोई जवाब नहीं। हजरत बिलाल हबशी ने आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा। कहते हैं, ऐ अरब मर्द, तुम्हारा चेहरा लाजवाब है, तुम्हारा चलना लाजवाब है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहो तुम कहना क्या चाहते हो? हजरत बिलाल हबशी ने कहा, ऐ अरब मर्द, कहना यह चाहता हूं, मैं उमैया बिन खलब का गुलाम हूं, वो मुझसे दिन भर मजदूरी करवाता है, रात भर चकिया चलवाता है। मैं भी इंसान हूं, मुझे आराम करने के लिए कोई टाइम नहीं देता है, दिन भर मजदूरी करवाता है, रात भर चकिया चलवाता है। आखिर मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल करता है मैं भी आराम कर लिया करूं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहो कहना क्या चाहते हो? हजरत बिलाल हबशी ने कहा, ऐ अरब मर्द, कहना ये चाहता हूं कि आप मेरे आका से चल के सिफारिश कर दीजिए, वो मुझसे दिन में काम करवाया करे, रात में काम ना लिया करे, मैं भी आराम कर लिया करूंगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बिलाल, मैं सिफारिश तो नहीं कर सकता हूं, अलबत्ता इतना जरूर कर सकता हूं कि रात भर तुम सोया करना, तुम्हारी जगह पे ड्यूटी मैं कर दिया करूंगा। इतना कह के आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। रात का वक्त हुआ, आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उमैया बिन खलब के घर गए। बिलाल हबशी चकिया चला रहे थे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुम आराम करो, सो जाओ, मैं चकिया चला रहा हूं। सारी रात आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से चकिया चलाते रहे, सारी रात चकिया चलाते रहे। फजर का वक्त हुआ, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। दूसरी रात आती फिर चले गए, तीसरी रात आई फिर गए, चौथी रात फिर गए, यहां तक कि मुतवातिर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 रातों तक जाते, खुद चकिया चलाते, हजरत बिलाल हबशी को सुला देते। जब 40वीं रात आती है, बिलाल हबशी शशोपंज में डूबे हुए हैं कि अरब मर्द कितना अच्छा है जो 40 रातों से खुद नहीं सोया, मुझे जैसे गुलामों को सुला रहा है, खुद मेरी जगह पे चकिया चलाता है। हजरत बिलाल हबशी कदमों पर गिर जाते, गिरने के बाद कहते हैं, ऐ अरब मर्द, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा अखलाक कितना अच्छा है कि 40 रातों से तुम खुद नहीं सोए हो, मुझ जैसे गुलाम को सुला रहे हो, मुझ जैसे गुलाम को सुला रहे हो, खुद नहीं सोते हो। अरब मर्द, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल क्या तुमने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का नाम सुना है? बिलाल हबशी ने कहा, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जिन्होंने नबूवत और रिसालत का ऐलान किया है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मेरा ही नाम है। इतना कहना था, बिलाल हबशी कदमों पर पड़े हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देर ना कीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ा के दाखिल इस्लाम कर लीजिए। हजरत बिलाल हबशी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी निगाहों से देख लिया जो 40 रातों से खुद ना सोया हो, मुझ जैसे गुलामों को सुलाता हो। या रसूल अल्लाह, वो कोई और नहीं हो सकता है बल्कि अल्लाह का पैगंबर ही हो सकता है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी को कलमा पढ़ा के दाखिल इस्लाम कर लिया। बिलाल हबशी ने कलमा पढ़ा। उमैया बिन खलब को मालूम चला कि हजरत बिलाल हबशी ने कलमा पढ़ लिया। उमैया बिन खल्फ बिलाल हबशी को बहुत अजियतें देना शुरू कर देता है, बहुत तकलीफें देता। जिस तख्त के ऊपर लेटता था, शाम के वक्त उसके नीचे बिलाल हबशी के हाथों को दाब देता था, रात भर सोया करता था।
बिलाल हबशी की चीखें निकल जाती थीं, लेकिन कुछ कहते नहीं थे। उमैया बिन खलब कहता था, बिलाल अब भी तुम्हारी जान जाने में चंद सेकंड बाकी है, अब भी तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दो। हजरत बिलाल हबशी कहते थे, मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया, अब मैं कलमा नहीं छोड़ूंगा। तारीख में लिखा है कि उमैया बिन खलब बिलाल हबशी के हाथों को पैरों को रस्सियों से बांध देता था, बच्चों के हिवाले कर दिया जाता था। बच्चे आपको गरम गरम रेत के ऊपर घसीटते थे, कांटों के ऊपर घसीटा करते थे, बिलाल हबशी के ऊपर पत्थर मारा करते थे। आपके जिस्म की चमड़ी उधड़ गई है, चर्बी सारी उधड़ चुकी है, लेकिन बिलाल हबशी कुछ नहीं कहते थे। उमैया कहता था, बिलाल अब भी तुम्हारी जान जाने में चंद सेकंड बाकी है, अब भी तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दो। हजरत बिलाल कहते थे, ए उमैया बिन खलब सुन ले, मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे कलमा पढ़ने से रोक नहीं सकती है। उमैया बिन खलब बिलाल हबशी को बड़ा बेदर्दी से मार रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ, देखा ना गया कि उमैया बिन खलब बड़ा बेदर्दी से मार रहा बिलाल हबशी को। अबू बकर सिद्दीक की आंखें अश्कबार हो गई, देखा ना गया, दौड़ते हुए सरकार की बारगाह में पहुंचे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हजरत बिलाल जिन्होंने आपका कलमा पढ़ लिया है वो उमैया बिन खलब के गुलाम हैं। उमैया बिन खलब को मालूम चल गया वो बिलाल हबशी को बड़ा बेदर्दी के साथ मारता है। या रसूल अल्लाह, मुझे अबू बकर से देखा ना गया। या रसूल अल्लाह, मेरी तबीयत चाहती है, मेरा दिल चाहता है कि मैं बिलाल हबशी को खरीद कर आजाद कर दूं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, बिलाल को खरीदने में मुझे भी शरीक कर लो। कहा ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेते हैं, उमैया बिन खलब के पास गए। जाने के बाद कहते, उमैया बिन खलब, तुम अपने गुलाम को मार रहे हो, क्या इसे बेचोगे? उसने कहा, बेचूंगा। कहा कितने रुपए लोगे? कहा 2000 दिनार लूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने 2000 दिनार दिए, और भी शर्तें रखी, उनको मंजूर कर लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल हबशी को खरीद के आजाद कर दिया। अबू बकर सिद्दीक ने जब बिलाल हबशी को खरीद के आजाद किया था, उस वक्त बिलाल हबशी सरकार की बारगाह में दौड़ के पहुंचे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की नशो इशात के लिए कोशिशें कर रहे हैं। दिन ब दिन इस्लाम बढ़ता चला जा रहा, दिन ब दिन इस्लाम तरक्की कर रहा है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक व किरदार ही ऐसा था। एक मर्तबा आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ते से गुजर हुआ, देखा कि चंद बच्चे खेल रहे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के करीब गए, जाने के बाद बच्चों को सलाम करते हैं, सरकार चले गए। दूसरे दिन फिर आक़ा करीम का गुजर हुआ, देखा बच्चे खेल रहे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को सलाम किया, सलाम करने के बाद चले गए। दूसरे दिन इधर छोटे छोटे बच्चे आपस में मशवरा करते हैं, यार ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, ये हमें रोज पहले सलाम करते हैं, हमें चाहिए कि कल से हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम किया करेंगे। बच्चे मशवरा कर ही रहे थे, जब तक एक बच्चे ने कहा, हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे जब अल्लाह के रसूल पहले सलाम करने का मौका देंगे तब। अल्लाह के रसूल तो हमें पहले सलाम करने का मौका ही नहीं देते हैं। बच्चों ने कहा, कुछ भी हो जाए, कल हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। मशवरा कर लिया। तीसरे दिन मेरे सरकार का रास्ते से गुजर हुआ, देखा कि पेड़ के नीचे वही बच्चे खेल रहे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए। बच्चों ने देखा कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लिए आ रहे हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों ने देखा कि आ रहे हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि बच्चों ने देखा कि आक़ा करीम आ रहे हैं। बच्चे दरख्त के नीचे खेल रहे थे, पेड़ के नीचे से हट करके झाड़ियों में जाके छुप गए। जब झाड़ियों में छुप गए, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, उसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बच्चे झाड़ियों से निकलते हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, सलाम पेश करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब बच्चों ने आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम किया। करने के बाद किसी ने सरकार का दाहिना हाथ पकड़ा, किसी ने आक़ा करीम का बायां हाथ पकड़ा,
किसी ने आगे से दामन पकड़ा, किसी ने पीछे से पकड़ा। बच्चे कहते हैं या रसूल अल्लाह, कल आप निकले थे हमें पहले सलाम किया था, परसों आप निकले थे पहले सलाम किया था, लेकिन या रसूल अल्लाह आज आपने हमें पहले सलाम क्यों नहीं किया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चों सुनो, मैं चाहता आज भी तुम्हें पहले सलाम कर लेता, लेकिन मैंने तुम्हें पहले सलाम इसलिए नहीं किया कि कल तुमने आपस में मशवरा किया था कि हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। बच्चों सुनो, मैं चाहता आज भी तुम्हें पहले सलाम कर लेता, लेकिन इसलिए पहले सलाम नहीं किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं इस दुनिया इंसानियत का आखिरी रहनुमा हूं, मैं इस दुनिया में किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ने के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह, क्या शान है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यही मेरे सरकार हैं, रास्ते से गुजर हुआ, देखा कि चंद बच्चे खेल रहे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के करीब गए, जाने के बाद बच्चों को सलाम किया। जब सरकार ने बच्चों को सलाम किया तो बच्चे करीब आ गए। आने के बाद कहते या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है कि आप हमें खजूरें खिलाएं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चों से कहा, बच्चों सुनो, मेरे पास खजूरें नहीं वरना खिला देता। बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह दुकान से खरीद के खिलाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चों सुनो, मेरे पास दिरहमो दीनार भी नहीं वरना खरीद के खिला देता। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह, जब तक आप खजूरें खिलाएंगे नहीं हम आपको यहां से आगे नहीं जाने देंगे। इतना कहा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखिए, मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक देखिए। बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको आगे नहीं जाने देंगे। बच्चों ने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घेर लिया। मेरे आका का अखलाक देखिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों की तसल्ली तशफ़ी के लिए, दिलजोई के लिए बैठ जाते हैं। बच्चों ने मेरे सरकार को ऐसे घेर लिया जैसे शमा के करीब परवाने इकट्ठे हो जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी देर तक बच्चे घेरे बैठे रहे। कुछ ही देर के बाद अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब का गुजर हुआ। हजरत उमर बिन खत्ताब ने देखा कि बच्चों ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया है। बच्चों ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा है। हजरत उमर फारूक आजम को गुस्सा आया, बच्चों को डांटना शुरू करते हैं। कहते बच्चों तुम्हें पता नहीं, तुमने अल्लाह के पैगंबर का रास्ता रोक लिया। उमर फारूक आजम ने बच्चों को डांटा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर बच्चों को डांटो मत, इसलिए कि बच्चों का दिल बड़ा कमजोर होता है, बच्चों का दिल बड़ा नाजुक होता है, इन्हें डांटो मत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कहा। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब अपने दिल में कहते हैं, या अल्लाह तेरे महबूब का किरदार कितना अच्छा है। अमीरुल मोमिनीन दिल में कहते या अल्लाह तेरे पैगंबर का अखलाक कितना अच्छा है। उमर फारूक आजम भी बैठ गए। कुछ देर के बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चों सुनो, मेरे पास खजूरें नहीं वरना खिला देता, दिरहमो दीनार नहीं वरना खिला देता, खरीद के खिला देता। बच्चों सुनो, अगर तुम खजूरें खाना चाहते हो तो चलो किसी दुकानदार के पास मुझे लेकर के, मुझे फरोख्त कर देना, मुझे बेच देना, मेरे इवज में, मेरे बदले में खजूरें खा लेना। इतना कहा। वो बच्चे थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचने के इरादे से लेकर के चल दिए। नबी उठे, बच्चे उठे, सरकार चल रहे हैं। बच्चे कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे 5 खजूरें चाहिए, कोई कहता 3 चाहिए, कोई कहता 7 चाहिए, कोई कहता 9 चाहिए, कोई कहता 11 चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुकानदार के पास गए। जाने के बाद कहते दुकानदार सुन, ये बच्चे जिद पे अड़े हुए हैं, खजूरें खाना चाहते हैं, मेरे पास खजूरें नहीं वरना इन्हें खिला देता, दिरहमो दीनार नहीं वरना खरीद के खिला देता। ऐ दुकानदार सुन ले, तू मुझे खरीद ले, मेरे बदले में इन बच्चों को खजूरें खिला दे। अब वो दुकानदार अल्लाह के पैगंबर का चेहरा देखता है। दुकानदार कहता या रसूल अल्लाह, ये दुकान भी आपकी है, दुकानदार भी आपका है। इतना कहा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए, बच्चों को खजूरें तकसीम कर रहे। किसी ने 5 ली, किसी ने 7 ली, किसी ने 11 ली, किसी ने 13 ली। जिस बच्चे ने जितनी खजूरें मांगी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतनी खजूरें उस बच्चे को अता कर दी। अब वो बच्चे खजूरें लेकर के चल दिए
کیا دیکھا کہ سامنے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ بچوں نے امیر المومنین عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد کہتے عمر تم ہمیں ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کو جانے دو۔ عمر سنو، ہم بچے ضرور ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کا دامن پکڑ لیا ہے اس نے جو مانگا ہے وہی پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ بچوں سے محبت کرتے تھے، بہت زیادہ بچوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بچوں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ سرکار کچھ نہ کچھ بچوں کو عطا کر دیتے تھے۔ اب بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا، جب سرکار نماز ظہر پڑھنے کے لیے جاتے تو بچے سرکار کے آنے سے پہلے راستے میں کھڑے ہو جاتے۔ جب بچے دیکھتے کہ اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں تو بچے کہتے میرا مدینے والا آ گیا۔ بچے یہ کہتے تھے میرا مدینے والا آ گیا۔ ایک یہودی کا بچہ بھی تھا جس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لڑکے سے اس کی دوستی ہے۔ ایک دن وہ یہودی کا بچہ مسلمانوں کے بچے سے کہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیا ہم سے بھی اتنی محبت کریں گے؟ کہا ہاں، وہ مسیحا ہیں، جتنی محبت وہ ہم سے کرتے ہیں اتنی محبت وہ تم سے بھی کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے تھے۔ وہ یہودی کا بچہ بھی سب سے آگے کھڑا تھا۔ اس نے جب نبی کو آتے ہوئے دیکھا تو سب سے تیز آواز سے کہتا ہے کہ مدینے والا آ گیا، میرا مدینے والا آ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے بچے کو گود میں لیا اور کندھے پر بٹھا لیا۔ سرکار مسجد میں چلے گئے۔ روزانہ اس یہودی بچے کا مشغلہ بن گیا کہ وہ بھی سرکار کو آتے ہوئے دیکھتا تھا، دیکھ کر کے کہتا تھا میرا مدینے والا آ گیا ہے، دیکھ کر کے وہ کہتا تھا مدینے والا آ گیا۔ مسلمانوں کے بچے بھی کہتے تھے مدینے والا آ گیا۔ ایک دن بڑا شدت کی دھوپ تھی، بہت تپش، بڑا شدید دھوپ ہے۔ وہ یہودی کا بچہ مسلمانوں کے بچوں کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے مدینے والے آقا کے آنے کا وقت ہو گیا اور چلتے ہیں۔ مسلمانوں کے بچوں نے کہا نہیں، بڑا شدید دھوپ ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ کئی بچوں کے پاس وہ بچہ جاتا ہے لیکن سارے بچوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ آج وہ تنہا یہودی کا بچہ راستے میں جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو تنہا کہتا ہے میرا مدینے والا آ گیا، میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے اندر گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ ادھر یہ یہودی کا بچہ سرکار نے جو نالین شریفین نکالی تھی، سرکار کی چپلیں بچہ اٹھاتا ہے اپنی جھولی میں رکھ لیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے مسجد کے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں بچے کی جھولی میں آپ کی نالین شریفین ہیں۔ بچے نے سرکار کو وہ نالین مقدس دی اور دینے کے بعد بچہ گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد اچانک وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ جب بچہ بیمار ہوا گھر والوں نے کہا کیا ہے؟ بچے نے کہا اے میری والد ماجدہ، مجھے اللہ کے پیغمبر سے بہت محبت ہے، میں نے اپنا ان کو محبوب بنا لیا ہے۔ ماں نے ڈانٹا، ماں نے کہا بیٹا تم نے جس کو اپنا محبوب بنایا ہے اسی محبوب کو مارنے کے لیے تمہارے گھر میں میٹنگیں کی گئی ہیں، تمہارے گھر میں اسی کا اسلام مٹانے کے لیے سازشیں رچی گئی ہیں۔ بچے نے کہا ماں کچھ بھی ہو، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، اب ان کی محبت میرے دل سے نکلے گی نہیں۔ بچہ بہت بیمار ہو گیا۔ جب زیادہ بیمار ہو گیا یہاں تک کہ بچہ مرنے کے قریب پہنچ گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے صحابہ وہ یہودی کا بچہ نظر نہیں آ رہا جو روزانہ میری محفل میں آتا تھا، جسے میں روزانہ دیکھا کرتا تھا؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ جب مرنے کے قریب پہنچا تو ماں نے پوچھا بیٹا تمہاری کوئی آخری تمنا ہے، تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہاری کوئی آرزو ہے، تمہاری کوئی چاہت ہے؟ تو بچے نے کہا تھا ماں میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے پیغمبر کی زیارت کر لوں، میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لوں۔ اتنا کہا، کہنے کے بعد ماں نے کہا بیٹا تمہارے باپ تو جائیں گے نہیں؟ بچے نے اپنے باپ کو بلایا، بلانے کے بعد باپ جب قریب پہنچا تو بچے نے کہا بابا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی زیارت کر لوں۔
बाप ने कहा बेटा मेरे घर में उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया, मेरे घर में इस्लाम मिटाने की साजिशें रची गई, अगर हम बुलाने जाएंगे वो आएंगे नहीं। तब तक बच्चे ने कहा मेरे अब्बू परेशान ना हो, मेरा मदीने वाला आ रहा है। सुभान अल्लाह, मेरा मदीने वाला आ रहा है। बच्चे ने कहा मां हम तक खबर पहुंच चुकी है, वो अपने सहाबा के साथ आ रहे हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर अपने सहाबा के साथ चल रहे हैं। बच्चा कहता अम्मी दरवाजे खोल दो, मदीने वाला आ रहा है। माँ ने कहा बेटा तू मरने के करीब पहुंच गया, तेरा दिमाग पागल हो गया है, तेरा दिमाग कम हो गया, तू इसीलिए कह रहा है। बच्चे ने कहा अम्मा दरवाजे खोल दो, ये हवाएं बता रही हैं, ये फिजाएं बता रही हैं, इस घर के दरो दीवार बता रहे हैं कि मदीने वाला आ रहा है। माँ ने दरवाजा खोला तो बच्चा कहता मेरा मदीने वाला आ गया है। इतना कहना था, क्या देखता सामने वाकई मदीने वाला आ गया है। अपने साथ सहाबा की जमात लेकर के पहुंच गया। सुभान अल्लाह। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के पास जाते हैं, उसके रूह से जिस्म से आधी रूह निकल चुकी थी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चे कलमा पढ़ ले। बच्चा कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो जाता है। बच्चे ने कलमा पढ़ा, उसकी रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा सुनो, इस बच्चे ने मेरी यारी निभाई है, अब मैं इस बच्चे की यारी निभाऊंगा। ऐ मेरे सहाबा सुनो, इस बच्चे का जनाजा इसके मकान से नहीं बल्कि मुझ मोहम्मद के मकान से इस बच्चे का जनाजा उठाया जाए। मुझ मोहम्मद के मकान से इस बच्चे का जनाजा उठाया जाएगा। सहाबा ने लाश को लिया, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर ले गए, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस बच्चे का जनाजा लेकर के सहाबा चल रहे हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे, पूरा कदम जमीन पर नहीं रख रहे हैं। नमाज जनाजा के बाद में सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, आप इस बच्चे की नमाज, आप इस बच्चे के जनाजे में शरीक हुए थे, पंजों के बल क्यों चल रहे थे, आप अपना पूरा कदम जमीन पर क्यों नहीं रख रहे थे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा सुनो, मैंने इस बच्चे के जनाजे में इतने फरिश्तों को देखा था कि जमीन पर पूरा पैर रखने की जगह नहीं थी। सुभान अल्लाह।